یا حسین یا حسین یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین و سامعین کرام، آپ سب کو انتہائی محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ خاور حسین وارسی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ کربلا، آج 3 محرم الحرام۔ بڑے تسلسل کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مدینہ، مکہ اور کربلا میں سفر جو تھا اور جو بھی اس کے مقاصد تھے، فلسفہ کیا تھا، اس پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مزید اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور سمجھ سکیں، اچھا پیغام دے سکیں اور جو حقیقت ہے اس کو لوگوں کے آگے لے کے آیا جائے۔ سیدہ خانم ام فروہ زیدی صاحب رسول کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہی ہیں اور مجھے خود تو بڑا سکون مل رہا ہے ان کی گفتگو سن کر، کیونکہ سکون ملے گا ہی کیونکہ ذکر اتنا بلند ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے لیے کائنات بنی ہے، تو یقیناً آپ کو بھی بڑا سکون مل رہا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا۔ تو اپنا فیڈ بیک لازماً دیا کریں کمنٹ میں اور اس پروگرام کو آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس پیغام کو سن سکیں۔ ناظرین محترم، آج بھی بہت پیارا سوال اور بڑی گہرائی والا سوال، بلکہ شعر کہوں گا یہاں پہ ایک کہ آگ میں جاتے حر کو دی جنت، کیا بچانا میرے حسین کا ہے، کیا بچانا میرے حسین کا ہے، حضرت حر علیہ السلام۔ بلکہ یہاں پر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، بڑے لوگ کہتے ہیں امام حسین کے ساتھ رضی اللہ لگایا کرو، علیہ السلام نہ لگایا کرو، وہ تو اپنے غلاموں کو علیہ السلام کر دیتے ہیں، وہ تو اپنے غلاموں کو رضی اللہ کر دیتے ہیں، تو امام کا تو مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ مکالمہ حضرت امام حسین اور حضرت حر کا اور امام علی مقام کو رستے میں روکنا، اس کے حوالے سے سیدہ خانم ام فروہ زیدی صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ یہ خبر بہت خوبصورت شخصیت کا ذکر آپ نے کیا کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے جنہیں منتخب کر لیا ہو، ان کو پروردگار عالم جو ہے وہ خود بخود صراط مستقیم کی جانب لے جاتا ہے۔ اور جناب حر بن یزید الریاحی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہے کہ جنہوں نے مقام سالبیہ سے جو ہے وہ امام علی مقام کے ساتھ سفر برابر اس طرح کیا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ امام علی مقام کے ساتھ باقاعدہ طور پہ سفر کر کے ان کے بارے میں اطلاعات فراہم کی جائے اور ان کو مدینے کی طرف واپس آنے پہ بھی روکا جائے اور کوفے کی جانب جانے سے بھی روکا جائے۔ اور جناب حر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب حر اس سپاہی یزیدی سے تعلق رکھتے تھے کہ ان کے سالار تھے اور ان کو باقاعدہ طور پہ یہ مشن دے کے بھیجا گیا تھا کہ سید مظلوم کو مدینہ کی جانب واپسی کے لیے کوئی ایسا راستہ فراہم نہ کیا جائے اور کوفے کی جانب جانے والے تمام اور ان کے تمام ساتھی جو ہے وہ نہ کر سکے اور ان کو ایک ایسی جگہ گھیرا جائے کہ جو مقام ہو کہ جہاں سے نجات کا راستہ نہ ملے۔ لیکن میں کہا کرتی ہوں کہ حسین تو خود سفینہ نجات ہے، میرے حسین تو وہ ہے کہ جو اگر خاک کربلا کی خوش خاک پہ بھی تشریف فرما ہے تو میرے حسین خود سفینہ نجات ہے۔ حسین کو کوئی کیا نجات دے گا؟ حسین کے بارے میں اگر آپ کہیے تو میرے سید مظلوم وہ ہے کہ جناب نوح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب نوح آدم ثانی ہیں کہ ان کی کشتی جو ان کا سفینہ تھا اس نے انسانیت کو بچا لیا۔ اور سید مظلوم کے بارے میں یہ بات کہوں گی کہ میرے مولا وہ ہیں کہ وہ سفینہ نجات کے جنوب کو بچا لے، جو آدم کو بچا لے، جو ختمی کیا مرتبت کو بات بچا لے، اس کیا بات سفینہ نجات حسین کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات کہوں گی کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جناب سید مظلوم کو اس مقام پہ آنے کے بعد جو ہے وہ بہت سی مشکلات کا سامنا رہا، لیکن میرے مولا و آقا صبر کا وہ معیار قائم کرتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا
ज़ाहिरी सब्र करने वालों के साथ नहीं है। अगर आप इस तरह इसकी तफ़सीर देखिए, तो तफ़सीर कुरतुबी में वाज़िह तौर पे लिखा गया है कि खुदा ने उन साबिरीन पे सलाम भेजा है कि जिन्होंने दश्त बेगया में, जिन्होंने खाके करबला पे गर्म रेत पे सजदे दे के गर्दन कटा के खुदा से कहा है मेरे खुदा तू राज़ी हो जा। तो खुदा कहता रहा उदखिल बेशक, जन्नत, बेशक। या अली ए मेरे बंदे तू मेरी जन्नत में आ जा, मैं तुझसे राज़ी हो गया। अब नियत का वो आला मकाम जहाँ खालिक़े हकीकी ने खुद कह दिया कि हुसैन उफ़ खलीला, बस कर दे। हुसैन मैं राज़ियतुल मर्ज़िया, मैं राज़ी हूँ। तो देखिए कि इमाम आली मुकाम की हकीकत तो ये है कि हुर एक दुश्मन की सूरत साथ चले थे कि जब इमाम मुंतखब करते हैं कि वहाँ कहा वहाब कल्बी के बारे में भी यही कहा जाता है। जनाब वहाब कल्बी का किरदार बड़ा खूबसूरत हुँ, किरदार हुँ, है और हुँ। इन्हें भी इमाम अली मुकाम ने शर्फ अता किया था कि इनको अपने असहाब व अंसार में शामिल किया। जनाब खुर मुकाम सालबिया से अपने लश्कर को लेके साथ चले, हर मुकाम को मज़बूत करते चले गए। जहाँ-जहाँ इमाम अली मुकाम ने क़याम किया, ये अपने ख़ैमे साथ नस्ब करते थे और खुर को हुक्म दिया गया था कि इमाम को किसी निजात के रास्ते की जानिब ना जाने दिया जाए। अर्ज़े नैनवा पे मेरे मौला जब तशरीफ़ लाए और जब वहाँ क़याम नस्ब करने का इरादा किया और हुक्म दिया कि यहाँ क़याम लगाए जाए और ज़मीन करबला को जो है वो मामिन करार दिया गया, तो हुर ने एक मर्तबा बढ़ के जनाब इमाम सैयद मज़लूम के घोड़े की लजाम पकड़ ली। तो हाँ, उसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लजाम पकड़ ली, तो वहाँ एक शेर जो है वो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। तो वो अक्सर मैं कहा करती हूँ कि हुर ने शहे अबरार का रास्ता नहीं रोका। हुँ, हुर हुँ, ने हुँ। शह अबरार का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था, पता पूछ रहा था। तो हुर आए वो हाय! राहे क्या निजात बात पूछ क्या रहे थे। बात वो फिर वो सिरात मुस्तकीम पूछ रहे थे कि जिसके बारे में इमाम अली मुकाम जानते थे। जब हुर ने जनाबे क्या बात सैयद मजलूम के घोड़े की निजाम को पकड़ा, तो 2 जुमले मुकालमा बड़ा खूबसूरत है। मेरे मौला ने फरमाया, "ए हुर तेरी माँ तेरे सोग में बैठी।" जब ये जुमला कहा तो हुर ने बेसाख्ता कहा कि या हुसैन इब्न अली, आप तो ये जुमला कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये जुमला नहीं कह सकता, क्योंकि आपकी वालिदा वो मुक़द्दरा है कि जिन पे खुदा दरूद व सलाम भेजता है। तो हाँ, तब सुभान अल्लाह। जनाब हुर को इमाम सैयद मज़लूम ने कहा कि सोच जिसकी माँ इतनी मोहतरम है, उस हुसैन का क्या मर्तबा होगा। हुर क्या ने जाम बात छोड़ दी, हुर ने क़याम होते हुए देखा, हुर ने ख़ैमे लगते हुए देखे और फिर हुर के बारे में कहा जाता है 2 बेटे हैं जनाब हुर के, अली बिन हुर, बुकैर बिन हुर और हुँ, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बच्चे हैं कि देखिए कि जहाँ ईमान की रोशनी होती है, वहाँ जी, वो तसलसल कायम नस्लों में रहता है। तो हुर ने बेशक। जब 10 मुहर्रम के रोज़ देखा ना कि मेरा बेटा खंजर तेज़ कर रहा है, तो हुर ने पूछा कि ये खंजर किसका है? किस लिए तेज़ कर रहे हो? क्या हुसैन इब्न अली के बरसरे पे कार आना है? तो बेटे ने एक मर्तबा अपने खंजर को रख के कहा कि, "ऐ मेरे बाबा, मैं आपको सलाम करता था, लेकिन आज नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं हुसैन इब्न अली के दुश्मनों को हरगिज़ सलाम नहीं करूँगा।" फिर कहा, "ये अल्लाह! खंजर मैं इसलिए हूँ कि मैं हुसैन इब्न अली की सिपा में शामिल होना चाहता हूँ।" जब ये आलम देखा, तो हुर के दिल को इतना मुनव्वर किया खुदा ने कि हुर ने इमाम सैयद मज़लूम के कदमों पे सर रख के कहा था, "ऐ मेरे मौला व आका, मुझे सिरात मुस्तकीम दिखा दीजिए। ऐ मेरे मौला सुभान व आका, अपने लश्कर में शामिल कर लीजिए।" तो जनाबे हुर के बारे में कहा जाता है कि इतना बड़ा शर्फ अता किया सैयद मज़लूम ने कि जनाब सैयदा ज़हरा के तबरुकात में से एक रुमाल मेरे मौला अपनी कबा के दामन में रखा करते थे कि जो शहज़ादी के हाथ का रुमाल था और मौला अपनी कबा के दामन में वो रखा करते थे। लेकिन जब हुर की शहादत का वक़्त आया और जनाब हुर को शहादत नसीब हुई, तो उनके सर पे नेज़ा मारा गया था, उनका सर शगाफ़ता हो गया था। मेरे मौला जब पहुँचे तो हुर दमे नज़ा पे थे। आका ने अपनी कबा के दामन से जनाब सैयदा के रुमाल को निकाला और हुर के सर पे वो रुमाल बाँध दिया और वो रुमाल बाँधने के बाद मेरे आका ने जब हुर को देखा तो एक मर्तबा पुकार के कहा, "हुर जब रोज़े महशर तुम उठोगे, तुम्हारे सर पे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के हाथ का रुमाल बंधा होगा।" तो ये इतना बड़ा शरफ़ है कि सैयद मज़लूम ने ना सिर्फ़ अपने
पास आने वालों को निजात से नवाज़ा है, बल्कि मरातिब से नवाज़ा है। आपने कहा अलैहिस्सलाम, मैं समझती हूँ कि अलैहिस्सलाम बनाना मेरे हुसैन की कीमियागरी है, मेरे हुसैन का बेशक, शरफ़ है। तो मौला वाक़ा का बेशक। इतना बुलंद मर्तबा है कि सैयद मज़लूम ने यहाँ इस बात को बस थोड़ा-सा इस हवाले से बयान करती जाऊँ क्योंकि मसाइब के अय्याम है, जी, जी। तो लोग फ़ज़ाइल इमाम के बारे में बहुत कम सुनते हैं। तो जी, इतना जी। कहूँ कि इमाम की आखिरी जहाँ इमाम की शहादत के लम्हात थे, तो वहाँ कहा हुँ, जाता है हुँ। कि शाम से एक ऐसा पहलवान आया, उसको जी, शाम की फ़ौज में शामिल करके बुलाया गया कि जब वो जंग करने के लिए करबला आया तो उसको इल्म में नहीं था। तो उसकी बेटी ने उससे कहा कि ए बाबा आप जंग करने जा रहे हैं, मेरे लिए क्या तोहफ़ा लाइएगा? तो इसने कहा कि वहाँ जो मुझे मयस्सर होगा मैं तुम्हारे लिए लाऊँगा। जब ये मज़लूम के करीब पहुँचा और वहाँ रिवाज था कि शहादत से क़ब्ल मौला को जिस तरह उनके तबरुकात को लूटा गया, जब ये करीब पहुँचा तो ये मेरे मौला आका ने अपनी मुट्ठी में याकूत लेके इसको देते हुए कहा, "ये अपनी बेटी को मेरी तरफ से दे हाय, देना हाय, क्योंकि क्या बेटियों का एहतराम करते हैं।" तो आप देखिए कि कितना खूबसूरत मिज़ाज है उस इमाम का, जिसकी बेटी को ताज़ियाने लगा रही है उम्मत, अल्लाहू जिसकी अकबर! बेटी के बालों अल्लाह को घसीटा गया, जिसके कानों से दुर नोच के उतारे गए। मेरा हुसैन वो साबिर इमाम, मेरा हुसैन वो कामिल इमाम कि जो अपनी नाना की उम्मत के लिए इतना मेहरबान है कि आलमे नज़ा में भी मेरे मौला ने अपनी सखावत को कायम रखा। तो या हुसैन इब्न अली से दुआ के अय्याम हैं, या हुसैन इब्न अली से निजात के असबाब तलब करने के अय्याम हैं। हम हुसैन बेशक, इब्न अली की अज़ीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। हम कहते हैं मौला आपके मसाइब, आपके गम इतने ज़्यादा हैं कि मेरा ख़्याल है कि हमारे आँसू ख़त्म हो जाएँ, लेकिन पे रोने का हक़ अदा। जी नहीं हो फरमाइए। सकता, नहीं हो सकता, बेशक नहीं हो सकता। हम जितने मर्ज़ी अल्फ़ाज़ लें, उनकी शान का भी हक़ नहीं अदा हो सकता और जितना दर्द और गम मेरे हुसैन ने सहा और हम अगर पूरी कायनात भी आँसू बहा दे तो नहीं उनका गम का हक़ अदा कर सकते हम। और मेरे इमाम अली मक़ाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्मत के लिए, अपने नाना की उम्मत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी और उम्मत को सोचना चाहिए कि करबला से क्या सीखना है और करबला वालों के लिए क्या करना है, क्योंकि रोज़े महशर उनको मुँह दिखाना है हमने जाकर। तो क्या हम हुसैनी किरदार अदा कर रहे हैं? क्या हम हुसैन वाला किरदार अदा कर रहे हैं? क्या हुसैन ने जो पैगाम दिए, क्या हम उन पर चल रहे हैं? तो हमने ये गौर व फ़िक्र करना है अपने ऊपर और अपनी ज़ात का मुहासबा करना है कि हम कहाँ हैं और करबला वाले हमें क्या दिखा के गए हैं। एक वो भी वक़्त था कि इमाम अली मक़ाम सैयदना हज़रत इमाम अली ने भी एक लिबास उतारा था एक मलऊन के चेहरे से कि वो भी नमाज़ बड़ी अच्छी पढ़ रहा था, वो भी जो है वो अपने ऊपर इस्लाम का लिबादा उसने ओढ़ा हुआ था, तो अपने ऊपर वार करवा के दिखाया था कि फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। और इमाम अली मक़ाम सैयदना इमाम हुसैन ने करबला में भी यही करके दिखाया। फ़क़त ये ना समझना जिसके हाथ में तस्बीह है, वही दीन वाला है, इस्लाम वाला है। फ़क़त ये ना समझना कि अगर कोई जो है वो दीन के पैगाम दे रहा है या इस्लाम का लिबादा ओढ़ के बैठा तो बस यही है। यही चीज़ तो दिखाई इमाम ने कि क्या यज़ीद नमाज़ नहीं पढ़ता था? क्या ये सब कुछ नहीं था? वो यही कह रहे थे कत्ले हुसैन जल्दी-जल्दी करो, हमने नमाज़े असर अदा करनी है। तो ये लिबादा जो उन्होंने ओढ़ा हुआ था, ये इमाम ने दिखाया कि 2 ही तो फ़िरके बचे हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि फ़िरका वारिद क्या कि करबला के बाद 2 ही फ़िरके बचे हैं, एक हुसैनी और एक यज़ीदी। अब हमने देखना है हम किस फ़िरके में जा रहे हैं, हम किस अकीदे में जा रहे हैं, बस यही अकीदा है, हुसैनी अकीदा ही है जो हमें जन्नत तक लेके जाएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ख़ावर हुसैन वारसी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फ़लसफ़े करबला में नए सवालों के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।